صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا سہارا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد. میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال، میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال. روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی وہی عکس جمال، کس کا اوجے کمال، میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال، میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال. وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے، ہاتھ ان کے اٹھے ڈوبا سورج پھرے، چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے، وہ نہ ہو تو رکے گردش موسیٰ، کس کا جے کمال، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. ان پر لاکھوں کروڑوں درود اور سلام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود اور سلام. اس جہاں میں کوئی ایسا یا نہیں، دھوپ میں جو چلے اور سایہ نہیں، فرش تو فرش ہے عرش پر بھی نہیں، ایسی کوئی نظیر ایسی کوئی مثال، کس کا جے کمال، میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام. میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال، میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال. بہت بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. میری بہن اس وقت موجود ہیں سیدہ طیبہ شاہ صاحبہ، اور بہت ہی خوبصورت بڑی دھیمی سی مدھم سے انداز میں انہوں نے مدح سرائی کیا آقا جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. میری بہن میں چاہتا ہوں اور میں دعا کو ہوں میں کہ یہ عقیدت، یہ محبت، یہ نذرانہ بارگاہ رسالت میں ضرور قبول. آمین ثم آمین. الہی آمین. ہم سوال و جواب کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ دامن وقت میں ہمیشہ مجھے شکایت یہ رہتی ہے کہ دامن وقت میں گنجائش انتہائی کم ہوتی ہے اور یہ دامن سکڑتا چلا جاتا ہے. مفتی اخوندزادہ صاحب، آپ کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی لوگوں نے بڑا پسند فرمایا ہے، اور کچھ سوالات کل بھی رہ گئے تھے جی، کچھ سوالات آج بھی آئے ہیں، تو پی سی آر پینل کنٹرول روم پہ ہمارے ناصر شاہ جو بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مجھے ذرا تھرو کر دے جو سوالات انٹرنیشنلی آ رہے ہیں. اس وقت کچھ سوالات میرے پاس موجود ہیں اس وقت آپ کے لیے. مفتی صاحب، ایک سوال ہے اسلام آباد سے عاقب حسین کا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال مفتی اخوندزادہ صاحب سے یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کو زکوٰۃ یا صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، مختصر جواب یہ ہے کہ صدقہ آپ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے لیے انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، وہ مسلمان ہوگا تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. باقی صدقات تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں.
غیر مسلم ہو چاہے مسلم ہو. ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال حسنین صاحب ہیں کراچی سے، ان کا سوال ہے فطرے کے حوالے سے مفتی صاحب کہ جو فطرے کے پیسے ہم دیتے ہیں وہ کیا نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے یا عید کی نماز ادا کر کے عید کی نماز ادا کر کے بھی دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا جو اصل وقت ہے وہ ہے رمضان المبارک میں عید کی نماز سے پہلے. ٹھیک. کیونکہ یہ آپ کے جو روزوں میں کمیاں رہ گئی ہیں یہ اس کا کفارہ ہے، تو یہ عید سے پہلے دیا جائے. لیکن اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو آپ عید کے بعد بھی اس کو دے سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، گنجائش ہے کہ عید کے بعد بھی آپ اپنے فطرے کی رقم دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے اگر آپ یہ فطرہ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے تو پھر نماز کی ادائیگی کے بعد بھی دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی جو انٹرنیشنل فالوئنگ شروع ہوئی ہے، ہمارے پاس آسٹریلیا سے بھی سوال آ گیا ہے. عائشہ کا جو سوال ہے، عائشہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب سے ذرا سوال کر لیجئے کہ جو خواتین اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں یا بیٹھتی ہیں تو اس حوالے سے سوال ہے کہ وہ پورے 10 دن ہی بیٹھیں یا دن کم بھی بیٹھ سکتی ہیں، 3 دن 7 دن، یا ذرا رہنمائی فرما دیں کتنے دن بیٹھنا چاہیے خواتین؟ دیکھیں اعتکاف جو ہے اس میں 2 طرح کے، ایک ہے سنت اعتکاف، ایک ہے نفلی اعتکاف. ٹھیک ہے. جو سنت اعتکاف ہے وہ تو 10 دن 10 رات کا ہے. ٹھیک ہے. جو نفلی اعتکاف ہے وہ آپ 1 گھنٹے سے لے کر 3 دن تک 5 دن تک جتنی آپ کو اللہ توفیق دے آپ بیٹھ سکتی ہیں. لیکن اگر آپ سنت اعتکاف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ تو 10 دن کا تھا کہ 21ویں شب سے آپ بیٹھتے تھے، 20ویں شب سے، اور آپ پھر جو ہے وہ یعنی کہ آخری تک جب چاند نظر آئے یا 30 راتیں پوری ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ نکلتے تھے. یہ اس میں گنجائش ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اور اگر کوئی خاتون خانہ ہے جس کے بچے ہیں یا کوئی وہ ہے اور وہ زیادہ وقت نہیں دے سکتی ہے تو 1 دن بھی اعتکاف کر سکتی ہے، 2 دن کا بھی کر سکتی ہے، 3 دن کا بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک میری علم کے لیے سوال ہے کہ میری بھی تھوڑی سی اصلاح ہو جائے. اگر کوئی شخص ہے وہ عورت ہے، خاتون ہے، اور وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں لیکن ضروری کام بھی انہیں کرنے، اپنے خاوند کے لیے افطاری اور سحری کا اہتمام بھی کرنا ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں، تو اس پہ کیا روایت ہے، کیا ہدایت ہے کہ وہ بیٹھ سکتی ہے، بیٹھنا چاہیے، افضل ہے، یا بیٹھے تو پھر کس طرح مراحل؟ دیکھیں اس میں تو پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اصل میں خاتون کو بیٹھنا ہوگا اپنے گھر میں کوئی مسجد جو نماز کی جگہ ہے وہ مقرر کر کے. ٹھیک ہے. کہ یہ میری مسجد نماز کی جگہ ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے جتنے کام وہ کر سکتی ہے اس کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی ان کے لیے کھانا اٹھا کر لانے والا نہیں ہے تو کچن میں گئے اور اپنا کھانا اٹھا کے لا کے اپنا بوقت ضرورت. لیکن اگر آپ کو پورے گھر کی خدمت کرنی ہے اور کوئی آپ کے بغیر نہیں ہے اور متبادل بھی نہیں ہے، بیٹھنے سے سب کی زندگی ڈسٹرب ہوگی تو ان کو ہم یہ کہیں گے کہ پھر آپ سنت اعتکاف نہ کریں، آپ پھر نفلی اعتکاف جتنا موقع لگتا جائے آپ اعتکاف کرتے ہیں. نفلی کے 3 دن کے اندر بھی کیا وہ تمام 3 دن ضروری نہیں ہے، 1 دن بھی کر سکتے ہیں، آپ زور سے اثر بھی کر سکتے ہیں، آپ پوری رات کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی بیٹھ سکتے ہیں. بہت خوبصورت. اور ایک بالکل ریلیونٹ سوال ہے روزے سے بلال، آپ اگر اجازت دیں. یہ سرگودا سے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ روزے میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی شخص رمضان میں روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، قصدن چغلی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو پھر روزے پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ روزہ باطل فاسد ہو جائے گا، مکروہ ہو جائے گا یا کیا؟ دیکھیے روزے کا ٹوٹنے کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ کے معدے میں کوئی چیز چلی گئی تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، جھوٹ ہیں، کوئی بھی ہم غلط کام کرتے ہیں، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن جو روزے کی روح ہے وہ نکل جاتی ہے. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بھوک اور پیاس ہی روزے کا نام نہیں ہے کہ آدمی صرف بھوکا پیاسا رہے، لیکن اگر آپ نے جھوٹ یا کوئی بھی ایسا گناہ کر دیا جس کا آپ کے جسم کے اندر سے تعلق نہیں ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کی روح ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. ایک سوال اور اس وقت فیصلہ آباد سے ہی سوال کیا ہے ناصر نے. ناصر بھائی یہ کچھ اور سوالات بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ کچھ ذکر و اذکار کے وجہ سے، لیکن سوال کچھ یوں ہے کہ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے اور آخری مراحل میں جا چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی. مفتی صاحب سے پوچھیے گا کیا صرف روزے دار جو روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ان پر رحمت برس رہی ہے یا جو لوگ یہ تمام چیزیں نہیں بھی کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. تو کسی بھی وجہ سے اس میں آگے لکھا ہوا ہے بریکٹ کے اندر کہ اگر بیمار ہیں، ٹھیک ہے میں آپ کا سوال سمجھ گیا، تو اگر بیمار ہیں تو کیا ان پہ بھی رحمت برسے گی اللہ تعالیٰ کی اس عشرے میں؟ سب سے ایک عجیب بات میں آپ کو عرض کروں، یہاں پر میں تھوڑی سی بات کروں گا، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہے.
कुछ हमारी ख़वातीन जब इन दिनों में रमज़ान मुबारक में जो अल्लाह की तरफ से एक उज़र इनके लिए है, उस उज़र में आती है तो बहुत ज़्यादा अंदर से कुड़ती है कि जी मैं ना रोज़ा रख पा रही हूँ, ना मैं तिलावत कर पा रही हूँ, ना मैं तरावी पढ़ पा रही हूँ, तो अंदर अंदर कुड़ना शुरू हो जाता है और अपने आप को इल्ज़ाम देना शुरू कर देती है। और बाज़ ख़वातीन इस मौके पर ये अपने ऊपर ज़्यादती शुरू कर देती है कि वो टेबलेट्स लेना शुरू कर देती है, जो कि अंदर के निज़ाम को बिगाड़ने वाली चीज़ है। हम मना करते हैं शिद्दत से कि ना लो। क्यों? जब आप बीमार हैं तो जो अजर सेहतमंद आदमी को आला रोजे का मिल रहा है, आपको बीमारी का बिस्तर पे मिल रहा है। जितना इस वक्त तिलावत करने वाला आला तिलावत कर रहा है, उसको जितना अजर मिल रहा है, आपको बगैर तिलावत के मिल रहा है। तो ये रहमतें बीमारों पर और उन माजूरों पर जो किसी वजह से रोजा नमाज नहीं कर सकते, उन पर अल्लाह की तरफ से बरस रहा है, वो उसमें शामिल है इंशाअल्लाह। शामिल है जी। ये बिल्कुल सवाल है भी इस वक्त नहीं, आपके पास अगर सवाल है, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे और अपने नुमाइंदगान की तरफ जाएंगे। एक सवाल और है, बस जल्दी से इसका जो है ना जवाब दे दीजिएगा कि अगला महीना जो अगला जो अशरा है वो मगफिरत का है, लेकिन इनका नाम कुछ अजीबो गरीब सा लिखा हुआ है। मुझे समझ में दानियाल आ रहा है, लेकिन डैनी करके कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। बहरहाल डैनी भाई, आपका सवाल ये है कि मगफिरत का जो अशरा है उसके अंदर मगफिरत तो सबको मिलेगी, मगफिरत से मुराद क्या है, और कोई दुआ भी बता दीजिएगा, अमल या दुआ बता दीजिएगा कि मगफिरत के लिए क्या कर सकते हैं। मैं इससे पहले थोड़ा सा आपको ये बात, एक अजीब बात अर्ज करूं कि उसूलन जो है वो पहला अशरा मगफिरत का होना चाहिए था, अच्छा, फिर रहमत का होना चाहिए था, फिर जहन्नम से खलासी का होना चाहिए कि पहले आदमी माफ हो जाए ना गुनाहों से। पहला अशरा क्या है? रहमत का। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब यह है कि एक बहुत ही बच्चा है जिससे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब वो दरवाजे पे खड़ा है कि मुझे माफी मिल जाए। हम उसको कहते हैं माफ है, माफ है। एक है माँ बाहें फैला कर कहती आ मेरा लाल, आ मेरे लाल, मेरे सीने ना लग जा, और उसके बाद उसके कान में कहती है जा तुझे कुछ नहीं होता। तो ये जो रहमत का अशरा है, ये तमाम गुनहगारों के लिए, आओ जो भी तुमसे हुआ, रब तुमसे बात भी नहीं करेगा, मेरे सीने से तो लग जाओ। जब बंदा आता है रोजा रख के, तरावी पढ़ के, तो अल्लाह फरमाते हैं तूने 10 दिन ये किए ना, फिक्र न कर, तेरे रब ने तेरे सारे माफ कर। अब इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 काम करने हैं रमजान में जी। 2 काम तुम्हारी जरूरत के हैं और 2 काम जो है वो तुम्हारे रब की रजा की है। एक कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह और एक कसरत से अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली या अस्तग़फ़िरुल्लाह, या जो भी वो है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। और 2 काम जो तुम्हारी जरूरत की है, ए अल्लाह तू जहन्नम की आग से मेरी हिफाजत फरमा, और ए अल्लाह तू जन्नत को मेरे लिए वाजिब फरमा। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अख़ुंज़ादा साहब आपका। और ये सेगमेंट हमारा इख्तिताम पजीर हुआ है, वक्त दामन जो है वो सुकड़ गया है बिल्कुल जी। लेकिन इंशाल्लाह कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आपके सवालात को लेंगे और जितनी मुमकिन हो सके हम कोशिश कर रहे होते हैं कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है वो आप तक पहुंचाएं। लेकिन यहाँ पर बिलाल हम अपने नुमाइंदगान की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि वो भी बहुत देर से देती हैं कि इंतजार भी कर रहे हैं। मनाई जा रही है, बिल्कुल, हम आपको बताते हैं कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर हमारे नुमाइंदगान इंतजार कर रहे हैं। और इस वक्त सहर के औकात में, क्योंकि वक्त बड़ा कम होता है और हम कोशिश करते हैं कि उससे पहले सहरी का काम जो है मुकम्मल हो जाए, तो सरगोदा का रुख कर रहे हैं। वहाँ पर इस वक्त बहुत से लोग बाहर हैं। मोहम्मद अरसलान तबस्सुम इस वक्त एक निहारी की दुकान पर हैं। शायद अरसलान, कहाँ पर हैं आप? कौन सी निहारी की दुकान है और कैसे यहाँ पर सहरी हो रही है सरगोदा में? जी शुक्रिया शाइस्ता, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोदा के ऐन वस्त के अंदर, जहाँ पे निहारी की खास जो है वो यहाँ पे दुकान है। हलीम और निहारी का जायका जो चखना हो तो यहाँ पे शहरी जो है वो जोक दर जोक खिंचे चले आते हैं। यहाँ पे शहरियों का खासा रश है, सहरी करने के लिए शहरी जो है यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आप निहारी लेने के लिए आए हैं, क्या वजह यहाँ से निहारी लेने की? जी, शाहीनों का शहर जो है खाने पीने में जो है अपनी मिसाल आप बन चुका है, और खसूसन ये जो शॉप है यहाँ पे इनकी जो खसूसी 2 डिशें हैं, हलीम और निहारी। तो हलीम और निहारी जो है सर अफ्तार के टाइम जो है यहाँ से खाने के लिए अक्सर औक़ात हम अपने दोस्तों के हमरा आते हैं, और साथ जो पैक करवा के घर बच्चों के लिए घर वालों के लिए भी ले जाते हैं, क्योंकि इनकी 2 ही डिशें सिर्फ हलीम और निहारी, और ख़ास डिशें हैं, मुनफरद हैसियत रखती हैं और जायकादार भी हैं। पूरे सरगोदा में इन जैसी निहारी और जो हलीम है
कोई भी नहीं बनाता, इसलिए यहाँ पे जो खाने पीने के लिए अक्सर वो खाते जी, जैसा कि आपने शहरी की बात को सुना का शहरी का यही कहना था कि यहाँ की हलीम जो है वो खासी जायकेदार है, जो हम शहरी के लिए इसी को जो है मुंतखब करते हैं और यहाँ से हम शहरी के लिए जो है हलीम और निहारी लेने के लिए आते हैं और यहाँ से खासे महसूस होते हैं। जी खड़े होते। बहरहाल ये तो हो गया एज लाइफ, लेकिन कराची की जब बात करते हैं तो हमारे कुछ ख़ास नुमाइंदे हैं। ज़ुहैब इस वक्त मौजूद हैं कराची के एक ख़ास जगह पर। तो ज़ुहैब ज़रा आप भी बता दीजिएगा कि कहाँ पर हैं और किस तरह से कराची वाले जो है वो शहरी जो हैं कराची के वो बाहर सहरी कर रहे हैं इस वक्त, ज़रा बताइएगा। जी बिलाल, तो आज मैं मौजूद हूँ कराची की सबसे मशहूर फूड स्ट्रीट हुसैनाबाद पर। मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं कि सहरी का वक्त भी जो कि तू करीब करीब जा रहा है, वैसे ही लोगों का रश यहाँ मज़ीद बढ़ता जा रहा है। यहाँ लोगों से बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे यहाँ लोगों का जो रश होता है वो देख सकते हैं आप मेरे पीछे अभी भी इस वक्त मौजूद है। सहरी का वक्त भी बहुत करीब है और यहाँ से लोगों से जानते हैं, उनसे बात भी करेंगे। आए मेरे साथ। यहाँ आप सबसे ज़्यादा चलने वाला सहरी में आइटम क्या है? ये मैं देख रहा हूँ आप साथ ही हलवा पूड़ियाँ निकाल रहे हो, ये सबसे ज़्यादा चलने वाला आइटम यही है? हमारे सबसे ज़्यादा हलवा पूड़ी चलती है, उसके बाद मुर्ग चना पाया चलता है। जी देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जैसे सहरी का वक्त करीब होता जा रहा है, मेरी एक तरफ पराठे जो हैं वो ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हलवा पूरी है, उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं। यहीं पे मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? महबूब नाम है मेरा। महबूब, क्या देख रहे हो भाई, रश लगा हुआ है, दोनों बराबर के? यहाँ पे यहीं पे हूँ मैं, यहीं पे काम कर रहा हूँ। ठीक है जी। और हमारा स्पेशल लाहौरी तो पुराना लाहौरी है, ये काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो ये स्पेशल पाया और मुर्ग चना हमारा बहुत मशहूर है यहाँ का। तो ये हुसैनाबाद में एक ही लाहौरी है, कॉपियाँ और बहुत सारी आपको मिलेंगी, पर एक नंबर लाहौरी यही है कि एक दफ़ा जो खाएगा ना वो बार बार आएगा। अच्छा जी, एक दफ़ा जो खाएगा वो बार बार आएगा। साथ ही और भी मज़ीद लोगों से भी अंदर बात करेंगे, मेरे साथ आएँ। यहाँ जो खुसूसी तौर पर लाहौर का जो मुर्ग चना है उनका दावा है कि सिर्फ ये यहीं पे इसी होटल पे कराची में मौजूद है। इनसे भी बात करेंगे। यहाँ काउंटर पे भाई खड़े हैं। इतना रश लगाया हुआ है, सहरी का वक्त हो रहा है, इतना सहरी का वक्त भी करीब है, आवाम जो है रश जमे गफीर लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसा क्या खिला रहे हैं? मसला ये है कि हम हर चीज़ एक नंबर, हर चीज़ एक नंबर बेचते हैं, घी से लेके मसाले से लेके चीज़ से लेके, और हम खुद भी एक नंबर ही हैं। यही वजह है, अच्छी चीज़ बेचते हैं बस। क्या सबसे ज़्यादा फेमस डिश? सबसे फेमस ये है कि चना और पाया। साथ ही साथ मेरे इर्द गिर्द और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह करम शुक्र में। लाइव जा रहे हैं? हाँ लाइव है भाई। मैंने ज़रा पैगाम देना था कि घर वाले मेरे यहाँ हैं नहीं, वो पंजाब में। अब्बू को मैंने बताना था कि अब्बा जी सप्लाई ख़त्म कर दी है मैंने, अब फारिग में सैरी लेने आया हूँ और इनकी सैरी अच्छी होती है। चलो भाई, इन्होंने हाथ याद बिलाल हमारे साथ एक पैगाम भी जो है वो भी अपने वालिद साहब को पहुँचा दिया है जी। अच्छा शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे हमें। और अब हम रुक कर रहे हैं फैसलाबाद का। मैं जा रही हूँ फैसलाबाद। अगर आप फैसलाबाद जाएंगी तो फिर ये सहरी ट्रांसमिशन कौन कराएगा भाई? फैसलाबाद से मैं तो खुद ही वापस आ जाऊंगी, आप हौसला रखिए। आप जाएं फैसलाबाद और वापस आ जाएं फौरन। रिजवान, ओवर टू यू, कैसी तैयारी हो रही है आज सहरी की? जी शाइस्ता, बात की जाए फैसलाबाद के जिंदा दिलाने फैसलाबाद जो है उनके हवाले से, तो फैसलाबाद में जैसे जैसे रमजान मुबारक के रोजे गुजरते जा रहे हैं तो फैसलाबाद के शहरियों की जानिब से भी सहरी और अफ्तारी के नित नए जो तरीके हैं वो सामने आ रहे हैं। और अब आज की सहरी के हवाले से अगर हम बात करें तो फैसलाबाद के शहरियों ने आज रुख किया है मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं, बारबेक्यू पॉइंट्स हैं और खासतौर पर शवारमा और बर्गर के पॉइंट्स हैं। तो इस हवाले से ये एक मुनफरिद तरीक़ाकार है सहरी रखने का, सहरी खाने का। तो मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसा मुनफरिद तरीका जो है फैसलाबाद के शहरियों से की जानिब से क्यों अपनाया गया और सहरी के वक्त समोसा, बर्गर या शवारमा जो है इससे खाकर किस तरह का लुत्फ जो है वो उठाते हैं। बताइएगा, आप लोगों ने आज रुख किया है जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिनमें शवारमा और बर्गर शामिल हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? जी, ये तमाम चीज़ें हम अपने छोटे बच्चों के लिए ख़रीद रहे हैं क्योंकि वो भी सहरी के टाइम जाग रहे हैं, तो ये उनके लिए लेके जा रहे हैं बर्गर, शवारमा और बारबेक्यूज़ जिनको वो खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। जिनमें हमारे बच्चे हैं जो 10 से 12 साल के हैं, वो माशाल्लाह रोज़े भी रख रहे हैं और ये तमाम चीज़ें खाने वाली खाकर इन्जॉय कर रहे हैं। जी शाइस्ता, इनका ये कहना है कि ऐसी जो चीज़ें हैं बिलखसूस जो बच्चे हैं छोटे जो रोज़े भी रख रहे हैं और रमज़ान मुबारक की रहमतें जो हैं वालिदैन के साथ वो भी समेट रहे हैं, तो उनके लिए शवारमा और बर्गर और ख़ास तौर पर जो सैंडविचेस हैं उनकी ख़रीदारी जो है वो सहरी के वक्त भी की जा रही है। इससे इनका ये कहना है कि एक जानिब तो बच्चे जो हैं वो खुश हो जाते हैं, रोज़े रखते हैं, और दूसरी जानिब थोड़ा सा टाइम बाहर आउटिंग के लिए भी गुजार लिया जाता है। इसके साथ साथ जो पराठा और चाय के पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो रश है वो ताहाल जो है ख़त्म नहीं हुआ और शहरियों का इस हवाले से
कहना है कि एक तो घर में तो आप सैरी कर ही रहे होते हैं, लेकिन बाहर से लाकर सामान खरीद कर जो सैरी करने का मज़ा है उसका अलग ही एक लेवल है। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया। और शामिर भी कराची में इंतज़ार करें, कराची में क्या, कहाँ पर है, किस मौके पर, किस प्लेस के ऊपर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। शामिर की भी रिपोर्ट देखते हैं। हाजी बिलाल, बिल्कुल हम आपको बताते चलें कि रोज़ाना की बुनियाद पर शहरी के औकात में हम आपको शहर के मुख्तलिफ इलाकों से अपडेट देते हैं कि शहरी के अंदर लोग कहाँ जो है शहरी के औकात में सहरी करने के लिए अपने घरों से निकले हुए हैं। शाह फैसल कॉलोनी का ये इलाका है जहाँ लोग अपनी सहरी करने के लिए जो है फूड स्ट्रीट और खाने पीने के मराकज़ का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर मौजूद एक बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो खाने का लुत्फ़ उठाने के लिए आई हुई है। ये एक मशहूर पुलाव वाला है यहाँ पर, जिनका पुलाव जो है वो यहाँ बहुत मशहूर है और कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त अहबाब हैं जो यहाँ पर उस पुलाव से सहरी करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं, बात करते हैं कि वो जो है कैसा जो है इसको एंजॉय कर रहे हैं और कैसा लग रहा है सहरी में उनको। तो शहर कायद में वैसे तो गैस नहीं आ रही, अक्सर लोग इसलिए सहरी कर रहे हैं। आप ये दोस्तों के साथ आए हुए हैं, आपके भी घर में गैस नहीं आ रही? जायका, टेस्ट है इनका, और कोई वजह नहीं भाई। कैसा समझते हैं आप जो है सहरी के रमज़ान के दिनों में, रमज़ान की रातों में सहरी करना जो है बाहर, कैसा लगता है माहौल बाहर का? ये वैसे तो अच्छा ही होता है, लेकिन हम लोग अमूमन कम करते हैं बाहर। आज ऐसा है कि थोड़ा दोस्त वोस्त हैं तो साथ बाहर खा रहे हैं, वरना कम ही खाते हैं बाहर। तो शहर कायद की रौनकों से और शहर कायद के जो ये माहौल है सहरी का, आप इसको कैसा समझते हैं? ये कैसा माहौल है? आम दिनों के मुकाबले में आप ऐसे निकलते हैं बाहर? नहीं, आम दिनों में नहीं निकलते हम लोग। रमज़ानों में अमूमन होता है कि सहरी वहरी करने निकल गए बाहर, आम दिनों में नहीं निकलते इतना बाहर। जी, आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना था कि हम अपने दोस्तों के हमरा ही जो है रमज़ान के औकात में सहरी करने के लिए हम घरों से बाहर निकलते हैं, ताकि जो है यही वो मौका होता है जहां हम दोस्तों और फैमिली के दीगर अफराद के साथ मिल बैठकर जो है सहरी को जो है वो एंजॉय करते हैं। जी भाई, बहुत शुक्रिया शामिर। और दामन वक्त में गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है, दामन सुकड़ कर ख़त्म हो चुका है। हम तैयबा की तरफ बढ़ेंगे, आखिरी लम्हात हैं, तैयबा की नज़र के ये देते हैं ये प्रोग्राम। लेकिन मेरी नज़र खूबसूरत से नन्हे से शहजादे पर सामने बैठा हुआ, बिल्कुल कैमरामैन के हमारे साथ, और जाफर भाई जो है इसको पकड़ के बैठे हुए। शहजादे, तुम एक काम करो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये नन्हा शहजादा। नन्हे से शहजादे, तुम्हें अभी बुला लिया हमने, पहले तो अपना नाम बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? उमर नाम है तुम्हारा, माशाल्लाह। उमर, तुम इतने तैयार हुए हो, नात पढ़ते हो? कुछ पढ़ के सुनाओगे? चलो 2 अशारी पढ़ के सुना दो, ये लो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह, वसल्लम अलैका या माशाल्लाह, हबीब अल्लाह, चमक तुझसे अल्लाह, सब पाने अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह, 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 तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बरसता नहीं देख कर अब्र, माशाल्लाह, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बरसा दे बरसा, माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह भाई उमर, माशाल्लाह भाई उमर, बहुत बहुत प्यारे भाई, बहुत प्यारे भाई, माशाल्लाह, मेरे चश्मे
आलम से छुप जाऊं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, उमर सुभान बहुत अल्लाह, सुभान खूबसूरत। अल्लाह। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा भी नात पढ़वाएंगे। अभी वक्त की कमी है और आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। ये तुम्हारे लिए ना, और बहुत खूबसूरत ये मेरा शहजादा, इसको हम दोबारा बुलाएंगे। तैयबा ये आपके हुआ माइक और इस हम ट्रांसलेशन चाहेंगे का बिलाल इख्तिताम के आपकी हमें तरफ होगा। इजाजत दें और एक और बार कर लूं? मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा बहुत कर देते प्यारी हैं बिलाल। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिएगा तैयबा, जी आप वहाँ पे बैठे जाके। बिलाल, हम क्योंकि गुलजार क्लोजिंग साहब की का तरफ लिखा जा हुआ रहे हैं। कलाम पढ़ रही हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ, तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ, यूं जीने का सामान, माशाल्लाह, यूं जीने का सामान किए जा रहा माशाल्लाह, हूँ, माशाल्लाह। तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ। और तुम्हें मैंने देखा है अपने ही अंदर, तुम्हें मैंने देखा है अपने ही अंदर, तवाफ अपना खुद ही, तवाफ अपना खुद ही किए जा रहा हूँ, तवाफ अपना खुद ही किए जा रहा हूँ, तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ। हासिल कलाम शेर के। नहीं जानता कुफ्र और ईमान क्या है, माशाल्लाह, 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 बहुत प्यारा। नहीं जानता कुफ्र और ईमान क्या है, जो तुम कहे जा रहे हो मैं किए जा रहा हूँ, तुम कहे जा रहे हो मैं किए जा रहा हूँ, तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ। अता देख के